Mayur, are you there? Yes, ma'am. Happy birthday. Thank you so much, ma'am. Okay, Larry, do you want to perform first? Oh, yes. Residual. To love is the greatest gift one can to another freely give, for it is meant to add substance and meaning to the way we all live. It is not to be contained, adding value to what here on earth we spiritually, mentally, and physically gain, providing strength and hope when all seem lost, compromising and willing to sacrifice to uplift one's soul at any cost. Overall, making one a much better individual immediately and long after, while basking in love's undying and intangible residuals. Residuals. Euphoria is the second one. Love's intensity quickly raced down my body in a series of cascades into the endless ocean of tranquility, transforming its quietness into raging waters of emotions overtaken by the sweet, prolific melodies being conducted by the heartstrings, producing sweet and everlasting euphoria has visions of you and I slowly dance the night away, frozen forever in time. Euphoria. And um, something to give praise to God. So every morning I wake up grateful that another day has arrived. And despite the darkness over the horizon that looms, the sun continues to brightly shine. My lungs being filled with God given breath, and He is there to comfort me and wipe away from my eyes and face the many tears I have wept. The chance to once again get down on my knees, giving Him praise for all the wonderful ways He continues to show that He loves me, giving me strength and hope to continue when I feel that I just can't anymore, and enduring evilness against me that have formed, shielding me from the hurt and pain associated with life's tragedies and turbulent storms. Yes, to you, Heavenly Father, I lift my voice in arms and praise, grateful for another chance to see and do this another glorious day. Thank you. Nice. I loved it. Nice. Thank you. I mean, thank you. That was good. That was awesome, Larry. पहले मैं उनको बता दूं कि आलज्ञान जो है एक वेबसाइट है, जो न्यूज़ वेबसाइट है, जिसमें हर तरह के कंटेंट होते हैं। और आप जाइए, उसको एक बार चेक करिए और हमें सब्सक्राइब करिए। उसमें देखिए कि कैसे-कैसे कंटेंट है जो आपको इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं, उसमें हमने डाल रखे हैं। और हम एक श्रृंखला चलाने वाले हैं, जो नए कवि हैं उनको एक प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए। तो उसी के लिए हम लोग ओपन माइक हर संडे को करते हैं, और जिससे आप जुड़ सकते हैं और हमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। और इसके आगे किरण जी बताएँगे आपको। Who wants to perform? Can I first? Yeah. Okay. So the first one I'm going to perform is called depression. ये डिप्रेशन के ऊपर लिखा है। बिफोर स्टार्टिंग द राइमिंग्स मैं बताना चाहता हूँ, डिप्रेशन एक ऐसा वर्ड है जिसको हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। There are wounds that never show on the body and they are deeper and more hurtful than anything that bleeds. यानी कि अगर किसी को खरोच लगी और खून निकल रहा है, उसमें शायद इतना दर्द नहीं होता जितना एक डिप्रेस्ड पर्सन को होता है। सो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं एक डिप्रेस्ड पर्सन की वॉइस से, यानी कि थर्ड पर्सन बनकर उसके शब्दों को, उसकी भावनाओं को आपके आगे रख रहा हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि जब आप ये सुने और जिंदगी में आपको कभी पता लगे कि कोई भी डिप्रेस्ड है, प्लीज़ उसके पास जाएं और बोले यस आई एम देयर विद यू। सो मेरी इस पोएम का टाइटल है कि कोई तो हो जो बस एक दिन बैठकर मुझे सुन ले। जिंदगी की मुश्किल शर्तों से टूट चुका हूँ, मैं ऐसी जिंदगी से अब रूठ चुका हूँ। कोई तो एक दफ़ा इन मुश्किलों को चुन ले, कोई तो हो बस जो एक दिन बैठकर मुझे सुन ले। जाने क्या मैं हूँ और क्या मैं दिखाता हूँ,
खुद को ही नहीं जान सका, बड़ा पछताता हूँ। सीना कर बुलंद, बाहर से तो मैं बहुत इतराता हूँ, पर अंदर ही अंदर मैं बहुत घबराता हूँ। कोई तो एक दफा मेरी इन घबराहटों को चुन ले, कोई तो हो जो एक दिन बैठकर मुझे सुन ले। तुम्हें तो घेरा है दुनिया ने, मैं तो अपनी सोच से ही घिरा हूँ। उठने का अब मन नहीं मेरा, बहुत गहराइयों में मैं गिरा हूँ। कोई तो एक दफा इन गहराइयों को चुन ले, कोई तो हो बस जो बस एक दिन बैठकर मुझे सुन ले। थैंक यू। Wow. बहुत अच्छा, बेहतरीन। बहुत बढ़िया भाई, थैंक्स थैंक्स। बहुत सही, एंड बहुत सही। एंड इफ आई हैव टाइम Nice. कैन आई परफॉर्म मोर? Yes, you can perform. Okay, so the next one is called, let me get it up for you. Excuse me. Sorry. Can Yeah. you translate? Can you translate what you said in your first poem? That was in your native language, right? Yes, that was in Hindi, Larry. Yeah. Can No you? problem. Can I don't understand your native language, but I like the translation because yeah. Larry, I understand, but no problem. The next one's gonna be for you. That is in English, so hope that Okay. will work Okay. out. Thank you. Okay, so the next one is like, we are people, we are humans, so there are a lot of things we do in front of the world, but there is something which happens behind the closed doors of life. People know what we are, but they don't know what we feel inside. So it's like, behind the closed doors of life is the title, and it is like that man born free, but it is always in chains, high like a palm tree, but crowded inside like a local train. He wishes to fly like he got wings of fire, but he is just a random one standing in a choir. The sky is the limit that he wants to beat, going through the rough time, facing the scorching heat. The untold battle he fights between the worldly wrongs and rights. The phrase rise above all is all what he recalls. He walks, he runs, and even flies and collapses from the highs. This is what all happens behind the closed doors of life. Thank you. Nice. I love that. It was a very straightforward piece. I love that. The message is amazing. Thank you Okay, all. Mayu, Thank do you you. want to perform? Yes. Okay. Yes, yes, yes. आवाज आ रही है मैं? हाँ. Okay. First of all, thank you. आपने विश किया मुझे. So इतना बड़ा स्क्रिप्ट ने लिखा है, छोटा सा लिखा है, जल्दी जल्दी में लिख लिया है. अभी जल्दी कंप्लीट करके भागना है अभी. So आज का मेरा टॉपिक है इंडियन मूवी नेम्स. और इंडियन मूवी नेम्स इतने खतरनाक होते हैं ना, वो नेम्स पढ़ के ही अगर आदमी थिएटर खाली हो जाता है, मतलब कोई जाता नहीं है, इतने मूवी नेम्स रहते हैं. मैं एक पहला बताता हूँ आपको, जीत विन टू वॉन. ये इसमें लगा था, कोई तो भी दंगल चैनल है, वो चैनल भी अभी कभी कभी गलती से लग जाता है, वो कोई ऐसा डिसाइड नहीं करता है वो चैनल में जाने के लिए. जीत विन टू बॉर्न मतलब हम जो पैदा हुए वो सिर्फ हम हारने के लिए पैदा हुए, ऐसा है क्या? जीत विन टू बॉर्न. और तो सिंपल लिख सकता है ना, जीत ये हासिल करनी है मुझे, या विनिंग इज माई ब्लड. जीत विन टू बॉर्न मतलब बाकी जो है वो सब जिंदगी में हार ही रहे, सिर्फ ये अकेला ही बंदा जीत रहा है. जीत विन टू बॉर्न. उसके बाद में आता है साउथ का मूवी है कसम पैदा करने वाले की. भाई तो नॉर्मली भी ऐसा बोल सकता है ना कि मेरे माँ बाप की कसम पैदा करने वाले की, मतलब तुझे डाउट है क्या पैदा करने वाले की, तू माँ बाप की कसम, ऐसा भी बोल सकता है ना, कसम पैदा करने वाले की. उसके बाद में सबसे खतरनाक आता है भोजपुरी का एक टाइटल है, टाइटल का नाम है तोहार लहंगा में ठाए ठाए. मतलब लगाए क्या भाई तेरे लहंगा में AK-47 लेके घूम रहा है क्या तू?
तेरे लहंगा की ना अपने इंडियन बॉर्डर में बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हर लहंगा में ठाए ठाए। भाई इतना खतरनाक लहंगा मत लेके घुमा कर। उसके बाद में है अपना बॉलीवुड का है, गूगल से निकाला है ये नाम, ये मूवी के बाद बारे में मुझे भी नहीं पता। टाइटल है सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा। सस- सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा, मतलब जो दूल्हा जो है वो गुच्ची या लुई विटॉन शोरूम में पैदा हुआ था, और जो दुल्हन है वो सब्जी वाले के पास पैदा हुई थी। सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा, क्या टाइटल रहते यार। चलो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आज था। इतना लिखा है। हमेशा की तरह मयूर, यू आर ऑसम। बढ़िया भाई, थैंक यू बढ़िया। सो मच। ओके, कोई इंग्लिश में परफॉर्म करने वाला है क्या? हाँ, मैं करने वाला हूँ इंग्लिश में परफॉर्म। ठीक है, तो आप परफॉर्म कर लो। Okay, so this is known as Seven Heavens Much. So this goes like avalanche, discordant voices, 25, roses, August yet red, gleam, gloss, mirrors been bleeding of loathing, seeming golden light, smoke covered, heat unfolding, broken, no testimonials, left dooming yet leaving him immortal. Avalanche, disaster to away led, discordant voices, screams for aches to calm, to 25 meant no sense of harm. Roses, August yet red, gleam, gleam, shine through deep, a bone unseen. August, flesh soulless and roses, a mirage, yet red, bone and sordid roses. Gloss, mirrors been bleeding of loathing. March, gainst August memories. March, a peace, match seven heavens. August, a dried forest, a seven hells. Seeming golden light, smoke covered, heat unfolding. Call it March, a heaven, or single stuck soul. August, a hell. Smoke of cigarette in pain or in love deep. Broken, no testimonials, yet breaking, future seems unclear. Testimonials to shall leave a justified closure. Broken, ever been this dooming or merrier. Left dooming, yet leaving him immortal, rather us to bask in busk for heaven ways, or signs to show hell is the other way. Yet leaving him immortal in poems, letters, a vulnerable heaven and hell of a life so anxious. So this is Seven Heavens Much. Okay, very nice. Anyone else want to perform? Hi. So the first one I'll be doing in Hindi, which is for all my Indians out here. So नमस्ते गाइस, मेरा नाम है ध्रुव और मैं 15 साल का हूँ और मैं बड़े होके स्टैंड अप कॉमिक बनना चाहता हूँ। अब एक बात ऐसी आती है कि मुझे बुरा लग रहा है कि मेरा पहला ओपन माइक लैपटॉप पे हो रहा है, जूम पे, क्योंकि पूरे साल मैंने जूम पे पढ़ाई करी और कुछ हुआ नहीं है। आंखें ऐसी हो गई है जैसे बाबू भैया हो रहे हैं हेरा फेरी के, चश्मे इतने मोटे लग जाएंगे मुझे, मैं सच्ची कह रहा हूँ। ओके, सो जब मैंने अपने पापा को बोला कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडी करनी है तो उनको कोई एतराज नहीं हुआ, बट एक लोग होते हैं एक तरह के जिनको बोलते हैं रिलेटिव्स, उनको मेरी जो चीज मैं करूं उनसे चुल मचती है। तो एक दिन घर पे आए मेरे रिलेटिव, उन्होंने बोला धवन साहब बेटा बड़े होके क्या बनेगा? माय डैड सेड कि एक कॉमिक बनेगा, स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है ऐसे। तो कहते अच्छा ये क्या होता है? मुझे नहीं पता, हम थोड़े ड्रॉन बैक है, हमें पता नहीं स्टैंड अप। तो पापा ने बोला जोक सुनाएगा। तो कहते 11वीं में क्या लिया? कहते ह्यूमैनिटीज। कहता जोक ही सुना रहा है और क्या कर रहा है? एंड देन दिस दैट सी, मैं 15 साल का हूँ, लोग इंजीनियरिंग करके स्टैंड अप करते हैं, मैं स्टैंड अप करके इंजीनियरिंग करूंगा। वैसे असली में नहीं, क्योंकि मुझे अपना पेट भरना है बड़े होके, तो इंजीनियरिंग करने का पॉइंट नहीं है इंडिया में। बट ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे बोला नहीं कि बेटा इंजीनियरिंग कर ले। मुझे इतने लोगों ने बोला इंजीनियरिंग कर ले जितने आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ,
मैं सड़क पे चल रहा था, मेरी कॉलोनी के एक अंकल आके बोलते कि बेटा तू वो कर ले जो मैं आज तक कर नहीं पाया, तेरी शक्ल भी अच्छी है, तेरे में दिमाग भी अच्छा है, 10वीं में मार्क्स अच्छे ले आए, तू इंजीनियरिंग कर ले बैठ के, तू सेटल हो जाएगा। मैंने बोला अंकल बात ऐसी है, मैं रात को रूम से बाहर निकलने में मेरी फटती है, मैं कंबल से बाहर पैर नहीं निकालता, पता चलता है अंदर से भूत पैर पकड़ के नीचे ना खींच ले। आपको लगता है मैं इंजीनियरिंग जैसी बदमाशी करूंगा? अच्छा है। Then there's that. And the second set is going to be in English for my man Larry out here. So yeah, you know, Zoom पे classes attend करने का एक drawback है कि वाईफाई कभी भी चला जा सकता है। और one night my Wi-Fi dipped on me. My Wi-Fi dipped on me and it wasn't even gradual. It dipped on me like that one kid who faints during morning assembly. ओम भूर्भुवः स्वः धड़म गिर जाता है वो बच्चा. Just like that. That's exactly what happened. It wasn't even gradual. You know, you can't hear stuff. The video gets blurry. Shreya turns into Shrek. None of that shit happened. It just died. And I got irritated because it was like 3 in the night and I ran to see what happened. And it turns out कि Wi-Fi crash हो गया. But अब एक बात बताओ मुझे, how can you repair something which has no buttons on it? आजकल कच्छों में बटन आते हैं, Wi-Fi के रूटर में बटन नहीं लगाया इन्होंने. समझ ही नहीं आ रहा कहां से क्या करना है भाई, डंडी से मार रहा हूं मैं उसे, कुछ तो कर ले. And then there's that. So that's my time. Thank you guys. That would be it. बहुत अच्छा था. बहुत अच्छा था। Good. नाइस, अच्छा. Amit, do you want to perform? Ma'am, let someone do first. I'll do after that. Okay. Just my phone just crashed. Can I I'm perform? laptop Yeah, meetings, please, actually. please. 1 second. तो मैं स्टार्ट करता हूँ. मेरी पोयम है, मतलब उसका टाइटल है अखबार. तो आजकल जो अखबार में मतलब जो होता है, मैंने 2 साल पहले करीब ये लिखी थी. तो देखिए इसको कि कल की बासी खबर को आज की ताजा करता है, बोल नहीं सकता पर आवाज ज्यादा करता है इंसान के हाथ में तो कुछ राज छुपाए रखता है, वरना पता चल जाता अखबार क्या क्या करता है. शादी करनी हो वो भी देख लो, नौकरी ढूंढनी हो वो भी देख लो, खेल की खबरें या चटपटी खबरें, सब मिलेगा इसमें, कुछ भी देख लो. लेकिन आजकल खबरें कम, दुकान ज्यादा लगती है. जैसे सब्जी बिकती है ऐसे खबरें बिकती हैं. तो उसमें जो ट्विस्ट है वो देखिए कि मतलब जो अखबार में होता है कि आज होगी रिलीज जानवी कपूर की डेब्यू धड़क, पड़ोसियों ने देखा पंखे से लटकता युवक, मटर पनीर बनाने के लिए पहले कढ़ाई रखे आंच पर, सलमान का शादी को लेकर बयान देखे पेज 5 पर, किया कराया हो या बीवी से नहीं बनती, दांतों को रखे स्वच्छ वी को वज्रदंती, एक ही लड़के से प्यार करती थी 2 बहनें, तैमूर ने कल पहली बार गुलाबी कपड़े पहने, नाइसिल हर्बल पाउडर दिमाग को रखे कूल, सेक्स समस्याओं के लिए हाई प्लस कैप्सूल, कंपनी के मालिक ने मोटा पैसा दे रखा था, एक पूरा पन्ना अकेली कार ने घेर रखा था, पैसों के लिए खबरों का धंधा मत कीजिए, कहीं तो रहने दीजिए यहाँ गंदा मत कीजिए, ये सब चीजें देखने को जियो है टीवी है, दरख्वास्त है अखबार को अखबार रहने दीजिए. भाई बहुत अच्छा. बहुत अच्छा था. सुपर. रचना है आपकी, बहुत अच्छा. Thanks very much. एक और पोएम है. हाँ. हाँ, इसका टाइटल है मैं कुछ भी नहीं करती. तो मतलब एक औरत है जो बताना चाह रही है अपने परिवार को कि मैं कुछ भी नहीं करती. उसको बोलते हैं ना वो सब कुछ करती हैं, फिर भी उसे बोलते हैं आप करती क्या हो. तो उसी को लेकर है कि मैं घर छोड़ आई, परिवार छोड़ आई, पराई चीज अपनाई, अपनी करी पराई, फिर भी मैं कुछ नहीं करती. मैं सबसे पहले उठ जाती हूँ, बच्चों को स्कूल ले जाती हूँ, सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ, सबके बाद में कुछ खाती हूँ, फिर भी मैं कुछ नहीं करती.
तुम्हारे जुराब रुमाल संभाल रखती हूँ, तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखती हूँ, तुम्हारी घड़ी पर्स मोबाइल वगैरह कहने से पहले ही निकाल के रखती हूँ, फिर भी मैं कुछ नहीं करती। दूध लाना, सब्जी लाना, कपड़े धोना, 3 वक्त खाना बनाना, तुम्हें खिलाना, बच्चों को खिलाना और खुद ताने खाना, मैं तो कुछ भी नहीं करती। इतनी परेशानी है तो कुछ दिन मेरी जगह गुजारना, मैं काम पर जाऊंगी और तुम घर संभालना, फिर आकर कहूंगी मैं तुम कुछ नहीं करते और तुम खाने की प्लेट लगाते हुए मुस्कुराना, फिर पता चलेगा मैं कुछ करती हूँ या नहीं करती। Awesome. Cheers, man. मैं एक दो शेर हैं वो और पढ़ देता हूँ। टाइम है ना मैम? तो शेर देखेंगे। उसकी खुशी की खातिर काफी चुप रहा हूँ अब तक मैं, कई बहुत पुराने राज अब भी मेरे पास हैं। उसकी खुशी की खातिर काफी चुप रहा हूँ अब तक मैं, कई बहुत पुराने राज अब भी मेरे पास हैं, और नामुमकिन नहीं मुश्किल है जीना अब भी थोड़ा थोड़ा, नामुमकिन नहीं मुश्किल है जीना अब भी थोड़ा थोड़ा, उसकी फोटो और आवाज अब भी मेरे पास है। शुक्रिया। एक मतला और एक शेर। एक मतला एक शेर है कि अच्छा नहीं था वो रिश्ता बोल रहे हो, होश में तो हो तुम ये क्या बोल रहे हो, कि अच्छा नहीं था वो रिश्ता बोल रहे हो, होश में तो हो तुम ये क्या बोल रहे हो, और इश्क में ताउम्र इज्जत रखनी होती है, इश्क में ताउम्र इज्जत रखनी होती है, ये नहीं साथ हो तभी अच्छा बोल रहे हो। एक मैम लास्ट है, उसको ये थोड़ा तो इसका टाइटल है इश्क भी एक मजबूरी होता, के स्टार्ट करें कि सोचो मम्मी तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे ना कहकर, खुश रहोगी ना कहती, सोचो पापा भूल जाओ उसे हम जहाँ कहेंगे वहां शादी होगी ना कहकर, तुम्हें खुश तो रख पाएगा ना वो कहते, सोचो किसी रिश्तेदार का फोन आता तो रिश्ते की बात ना कह के कोई बचपन का किस्सा सुनाता और साथ में ठहाके लगाता, सोचो हम खुद को बिछड़ते हुए देखने की जगह खुद को लिखते पढ़ते साथ में बढ़ते देखते, सोचो जिन रिवाजों में इश्क को बांधा जाता है काश ये इश्क भी एक रिवाज होता, सोचो जैसे मजबूरी में इश्क को झुकना पड़ता है, इश्क भी एक मजबूरी होता है, इश्क भी एक मजबूरी होता है। थैंक यू। मैम आप करूँ मैं परफॉर्म? Yeah. तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अमित कुमार अमित, परफॉर्म कर रहा हूँ बट नया तो नहीं हूँ यहाँ पे, तो मुझे थोड़ी देर बर्दाश्त कीजिए। मेरी कविता का शीर्षक है कर्म की प्रभु को पुकार। जो कर्मा होता है, जो हम कर्म करते हैं, उसको मैंने पर्सनिफाई किया है, मानवीकरण, उसको लिखने की कोशिश की है। मेरी पंक्तियां इस तरह से हैं। मैं राह था उस राही का जो अविरल पदरत था, मैं राह था उस राही का जो अविरल पदरत था, उस जूझते उद्यमी की मैं मेहनत था, रंगहीन रूपहीन मैं उज्जवल था, किसी में न था मैं फिर भी सकल था, पर लालच मक्कारी का बंदी बनाया गया मुझे, मैं स्वयं कर्म हूं पर कर्म फल बनाया गया मुझे। कृष्ण की गीता का मर्म मैं था, फलहीन होता कर्म मैं था, कर्म प्रधान भूमि का धर्म मैं था, पूजित था इसलिए सदा नर्म मैं था, जाति धर्म में तौल भुलाया गया है मुझे, आरक्षण और पक्षपात में फंसाया गया है मुझे। विद्या का अर्थ करने वाले उसी की अर्थी ले चले हैं, विद्या का अर्थ करने वाले उसी की अर्थी ले चले हैं, अर्थ का अनर्थ कर असमर्थ हो चले हैं, कर्म योग भूल सब ठग योग कर चले हैं,
सब सस्ता है शायद, इसलिए स्वयं को बेच चले हैं। मरती मानवता का साक्षी बनाया गया मुझे, इन निष्कर्म शवों का संगी बनाया गया मुझे। चलना नहीं है एक कदम पर जीत उनको चाहिए, चलना नहीं है एक कदम पर जीत उनको चाहिए, बाप परदादा की एक जागीर उनको चाहिए, बिन काम के अखबार में तस्वीर उनको चाहिए, लॉटरी जीते वही तकदीर उनको चाहिए। विजय विपाशा का रोगी बनाया गया मुझे, कर्महीन फल में ढोंगी बनाया गया मुझे। मेहनती का हक लिए है मूर्ख बैठा शीर्ष पर, मेहनती का हक लिए है मूर्ख बैठा शीर्ष पर, कोई न्याय हेतु क्या लड़े सब मापदंड इधर उधर, सब कर्म से भागे हैं अब मैं क्या कहूं किसको किधर, निष्काम कर्म योगी का करता नहीं कोई कदर, छल से अर्जित जीत में नीचा दिखाया गया मुझे, झूठी सभा में सत्य संग लज्जित बताया गया मुझे। सिद्ध होता स्वार्थ है अब हर किसी अभिमानी का, सिद्ध होता स्वार्थ है अब हर किसी अभिमानी का, भ्रष्ट मक्कारी भरा चरित्र हर मर्दानी का, बिना उद्यम पूर्ण देखो स्वप्न है अज्ञानी का, उठ गया विश्वास मुझसे आज तो हर ज्ञानी का। हे नाथ तेरा अस्त्र मैं व्यर्थ बनाया गया मुझे, सबका ही मूल में निरर्थ बनाया गया मुझे, निरर्थ बनाया गया मुझे। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हमेशा की तरह बेहतरीन, बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा था अमित। ओके, सो अब हम लोग एंड करने वाले हैं परफॉर्मेंस इस इवेंट को। मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि एट द एंड कि ऑलगैन के बारे में आपको अभी अनंत ने कुछ बताया था थोड़ा बहुत, मैं आपको दोबारा बताना चाह रही हूँ कि ऑलगैन एक ऐसा जरिया है जिसमें ऑथर अपने विचार प्रदर्शित कर रहे हैं, वो अपने थॉट्स को बताना चाहते हैं, उसमें हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, एंटरटेनमेंट के बारे में और भी बहुत कुछ चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। आप प्लीज़ ज़रूर जाएं, वहाँ पे आपको ग्लोबल न्यूज़ के बारे में मिलेगा जिसमें मतलब लोगों को जानकारी नहीं है बहुत सारी न्यूज़ के बारे में, जो कि उसमें बहुत अच्छे विस्तार से बताया गया है। तो आप ज़रूर जाएं और मैं आपको यूट्यूब का लिंक भी सेंड करूँगी आपके ये सारे परफॉर्मेंस का, तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और भी अपने फ्रेंड्स को और लोगों को शेयर करें। थैंक यू। थैंक्स एवरीवन, बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू अनंत एंड किरण, दिस वाज माय फर्स्ट टाइम। मैं बहुत सालों से लिख रहा हूँ बट मुझे पहला प्लेटफॉर्म मिला मैं किसी ऑडियंस के सामने परफॉर्म करूँ। एंड लाइक द अदर पर्सन जिसने स्टैंड अप किया, आई एम सॉरी मेरे को नाम याद नहीं, ही सेड के इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो लैपटॉप पे कर रहा है, बट आई फील दिस इज फॉर्चुनेट कि हम ऐसे पेंडेमिक में सेफली अपने टैलेंट को शोकेस कर पा रहे हैं विदाउट गेटिंग एनी हार्म। एंड आई फील कि ये जो भी चीज़ चल रही है हमारे वर्ल्ड में, इट हैपन सून और हम लोग कभी फेस टू फेस मिलके एक दूसरे से अपना आर्ट शेयर कर पाए। And I want to say thank you, even though I don't understand what you're saying. I'm sure it's poetry, so thank you very much. Thank you, Larry. Thank you. And one thing more I want to add, कि अगर आपको अपने सर्विस या फिर कोई भी बिजनेस का एड चलवाना हो तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट करें। कुछ भी अगर आपको प्रमोट करना हो तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट करें। हम इस वेबसाइट के थ्रू आपकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, सो आई एम एंडिंग इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू so much.